السلام علیکم ناظرین، 4 TV خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ ینگ اسکل یونیورسٹی کے تعمیری کاموں کا 9 نومبر سے آغاز۔ میگا کمپنی 200 کروڑ روپے خرچ کرے گی، وزیر اعلیٰ کے ساتھ یادداشت مفاہمت۔ ریونت ریڈی وزراء اور اپوزیشن لیڈرز کے فون ٹیپنگ کروا رہے ہیں۔ ہمت ہے تو لائی ڈیٹیکٹر کا سامنا کرنے کے ٹی آر کا چیلنج۔ اندرما مکان اسکیم بہت جلد شروع ہوگی۔ مستحق افراد کی نشاندہی کے لیے ایپ کی تیاری، پی سرینیواس کا جائزہ اجلاس۔ ایک پولیس ایک نظم کے مطالبے کو لے کر بٹالین پولیس ملازمین کا ریاست گیر احتجاج، منصفانہ اقدامات کا مطالبہ۔ شاہ میر پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں دلخراش سڑک حادثہ، نوجوان آر ٹی سی بس کی زد میں آ کر ہلاک، ساتھی زخمی۔ اور نالج سٹی اور ٹی ہب کے پاس کرتب بازی کرنے والے 40 بائکرز کے خلاف کیس درج، 2 ویلرز ضبط، رائے درگم پولیس کی کارروائی۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا، 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹومز روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک۔ بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے۔ عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ ڈیسائٹ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے اعلان کیا ہے کہ ینگ اسکل یونیورسٹی کے تعمیری کاموں کا آغاز 8 نومبر سے کیا جائے گا۔ میگھا انجینئرنگ انفراسٹرکچر لمیٹڈ اسکل یونیورسٹی کی عمارت پر 200 کروڑ روپے خرچ کرنے تیار ہیں۔
CSR के तहत यूनिवर्सिटी कैंपस तामीर करने और दीगर सहूलियात फराहम करने का कंपनी ने फैसला किया है। इस सिलसिले में एक याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए गए हैं। हफ्ते को हुए इस इजलास में कमेटी ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावा कैंपस में दरकार दीगर इमारतों की तामीर करने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा कि आलमी सतह की तमाम सहूलियात के साथ स्किल यूनिवर्सिटी तामीर की जाएगी। मेघा कंपनी के MD कृष्णा रेड्डी की सदारत में कंपनी के वफ्द ने हुकूमत से बातचीत की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का, दीगर काबीनी वज़रा, रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में याददाश्त मफाहमत पर दस्तखत किए गए। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके कंदकूर मंडल के मीरखान पेट के करीब 57 एकड़ आराजी पर यह यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। अगस्त में वज़ीर आला ने इसका संग बुनियाद रखा था। इसी मुकाम पर यह यूनिवर्सिटी तामीर की जाएगी। CSR फंड से यह यूनिवर्सिटी तामीर की जा रही है। मेघा कंपनी के इस काम के लिए आगे आने पर रेवंत रेड्डी ने उनकी सताइश की और मुबारकबाद पेश की। माहिरीन के तैयार करदा यूनिवर्सिटी इमारत के डिज़ाइंस का भी इस इजलास में जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि एक हफ्ते के अंदर डिज़ाइन को क़तियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 8 नवंबर से यूनिवर्सिटी की तामीराती कामों का आगाज़ हो जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि कंपनी को हुकूमत की तरफ से पूरा ताउन हासिल रहेगा। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि रेवंत रेड्डी वज़रा के साथ अपोजिशन लीडर्स के फ़ोन टैपिंग करवा रहे हैं। उन्होंने इस मामले में खुले मुबाहिस का रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया है। KTR ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो कैमरे के सामने इस मामले में लाई डिटेक्टर के साथ आएं। रेवंत रेड्डी में हिम्मत है तो उनका चैलेंज कबूल करें या खुलेआम ये ऐलान करें कि वो फ़ोन टैपिंग नहीं कर रहे हैं। हैदराबाद में मुनक्किद ABV प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला बनने के बाद निचली सतह की गुफ्तगू से गुरेज नहीं किया है। 100 दिन के वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। मुल्क में इनहराफ की सियासत का आगाज कांग्रेस पार्टी ने किया है। KTR ने आखिर में कहा कि जुनूबी रियासतों में डीलिमिटेशन के नाम पर नुकसान करना ये नाइंसाफी है। रियासती वज़ीर रेवेन्यू P श्रीनिवास रेड्डी ने इंद्रम्मा मकानात के मुस्तहिक अफराद की निशानदही के लिए खुसूसी ऐप का जायज़ा लिया। सेक्रेटेरिएट में वज़ीर मौसूफ ने इस ऐप से मुताल्लिक़ तफसीलात बताते हुए कहा कि इससे मुस्तहिक अफराद की निशानदही शफ़ाफ अंदाज में होगी। सियासी जमातें और किसी किस्म के भेदभाव के बगैर हर मुस्तहिक अफराद को मकान दिया जाएगा। इस ऐप से मुताल्लिक़ वज़ीर ने 2-3 तब्दीलियाँ की हैं। वज़ीर ने जो तब्दीली की है इसको दुरुस्त करने के बाद आइंदा हफ्ते अवाम के लिए इसे खोल दिया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि चंद दिनों में इंद्रम्मा मकानात की स्कीम का आगाज़ हो जाएगा। इसके इंतज़ामात आखिरी मरहले में हैं। देही इलाकों की आवाम को नज़र में रखते हुए इस ऐप में तेलुगु ज़बान का वर्जन शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिनको मकान नहीं हैं उनको मकान फराहम करना हुकूमत का मकसद है। इसको नज़र में रखते हुए ओहदेदार काम करें। तेलंगाना बटालियन पुलिस मुलाजिमीन और उनके अफराद ख़ानदान का रियासत भर में एहतजाज जारी है। एक पुलिस एक रोल को लेकर यह एहतजाज किया जा रहा है। हफ्ते को नलगुंडा, आदिलाबाद और हैदराबाद के भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया। नलगुंडा में एहतजाजी पुलिस मुलाजिमीन की तरफ से उनके साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई। आदिलाबाद में भी सड़कों पर बैठकर एहतजाज किया गया। पुलिस के आला हुक्काम की तरफ से एहतजाजियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने मुतालबात को लेकर अटल देखे गए। पुलिस हेडक्वार्टर्स और दफातर में जाकर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। रंगारेड्डी ज़िले इब्राहीमपट्टनम नागार्जुना हाईवे पर भी बटालियन पुलिस जवानों की तरफ से एहतजाज किया गया। इस मौके पर महेश्वरम DCP सुनीता रेड्डी के साथ एहतजाजी पुलिस मुलाजिमीन की नोक-झोंक देखी गई। बाद में पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि एहतजाजियों के अफराद ख़ानदान भी
धरने में शामिल थे। बीआरएस पार्टी की साबिक वजीर व रुकन असम्बली सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि एक पुलिस एक नज़म के मौक़िफ़ को रेवंत रेड्डी बरकरार रखने में नाकाम हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 18 दिनों से कांस्टेबल के अफराद ख़ानदान एहतजाज कर रहे हैं। इसके लिए रेवंत रेड्डी जिम्मेदार हैं और हुकूमत बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के इस तरह का मुजाहरा करने की वजह से आखिर इसकी क्या वजह है। उन्होंने कहा कि महकमे दाखिला चलाने में रेवंत रेड्डी नाकाम हो गए हैं। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि जो मुहाफिज हैं वही इंसाफ के लिए सड़कों पर निकल आए हैं। उन्होंने कहा कि यह तारीख में पहली बार हुआ है। क्या प्रजा पालना का मतलब यही है? उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला न होने की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। कांस्टेबल किसको बताएंगे? हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल जाहिर करना अफसोस की बात है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अपनी बात पर कायम रहें। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि इस मामले में डीजीपी सतह के आला ओहदेदार मदाखलत करें और इस मसले की फौरी एक्सुई करें। గతంలో కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు వీళ్ళకి సంబంధించి 26 రోజులు నెల రోజులు కంప్లీట్గా కుటుంబానికి దూరం ఉంటే కాదు, కనీసం వాళ్ళకి వెసులుబాటు కల్పించాలనే ఆలోచనతోని 15 రోజులకు ఒక 4 రోజులు వాళ్ళ కుటుంబంతో గడిపే విధంగా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. కానీ ప్రభుత్వం రాగానే ఇప్పుడు కొత్తగా మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ పాతగా ఉన్నట్టే వెనక్కి తీసుకున్న సందర్భాన్ని చూసినామంటే నెలలో 26 రోజులు పనిచేస్తే 4 రోజులు మాత్రమే కుటుంబ సభ్యులతో ఉండాలి అనే విషయాన్ని చూస్తున్నాం. కానీ ఎన్నికల కన్నా ముందు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడున్నారు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు. గౌరవ ఇప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి గారు, అప్పుడున్న ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా, ఆ రోజున పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఏక్ పోలీస్ వ్యవస్థను తీసుకొస్తాము, ఏక్ పోలీసింగ్ ఉండాలి అనేది గతంలో అసెంబ్లీలో ఉన్నప్పుడు మాట్లాడున్నారు. తర్వాత మొన్న కూడా పిసిసి అధ్యక్షుడు హోదాలో కూడా ఏక్ పోలీస్ అనే నినాదాన్ని తీసుకొచ్చి మేము వస్తే అది చేస్తామన్నారు. దాని పక్క కనీసం చూసే ఆలోచన కూడా చేయని పరిస్థితి ఉంది. కానీ నిన్న ఈ కానిస్టేబుల్ కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడుతున్న సందర్భంలో వాళ్ళ కానిస్టేబుల్ సంబంధించిన బాధను, అంటే వాళ్ళ భర్తలు వాళ్ళ కుటుంబంతో ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన బాధను దాన్ని వీళ్ళు ప్రభుత్వం దృష్టి तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए उनकी इज्जत उछालने की कोशिश की गई है। जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल पहले जब रुकन असम्बली थे, एक कलेक्टर पर अवामी मसाइल पर बरहमी जाहिर की थी, लेकिन बास चैनल में खातून कलेक्टर पर बरहमी जाहिर करने का प्रोपोगंडा किया जा रहा है। मौजूदा कलेक्टर को कुछ नहीं कहा है। जिसने ये झूठा प्रोपोगंडा किया है उनको खमियाजा उठाना पड़ेगा। उनको किसी भी हालात में बख्शा नहीं जाएगा। रियासती वजीर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के साथ मिलकर तेलंगाना के जंगलाती इलाकों, सड़कों के तामीराती कामों में मंजूरी न मिलने से पैदा हो रही रुकावटों का जायजा लिया। वजीर इमारत शवारिक कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि जंगलात महकमे की मंजूरी नहीं मिली है। इसको दूर करते हुए कामों में तेजी पैदा करने का फैसला किया गया। कोंडा सुरेखा ने भी इस बात से इत्तेफाक किया। वेंकट रेड्डी ने कहा कि जंगलात की मंजूरी न मिलने की वजह से 91 काम ज़ेरे इल्तिवा हैं। वज़रा ने फैसला किया कि ओहदेदारों को कामों में तेजी पैदा करने की हिदायत दी। कोमाटी रेड्डी ने कहा कि शाहराहों की तामीर में ताख़ीर होने से रियासत की तरक्की ठप हो जाएगी। 7 सड़कों के काम को मंजूरी न देने की वजह से 5 साल से ज़ेरे काम इल्तिवा का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात से मंजूरी हासिल करके खुसूसी ओहदेदारों का तकर्रुर करते हुए इस काम को मुकम्मल करें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान सी दियाकर ने कहा कि अपोजिशन पार्टी कितनी भी साजिश कर ले, मूसा नदी के सफाई प्रोग्राम को नहीं रोक सकती। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुतासरीन इसके खिलाफ नहीं है, अपोजिशन इसके खिलाफ है। ई राजेंदर गैर ज़रूरी मुतासरीन को इश्तियाल दिला रहे हैं। मूसा नदी की तरक्की मुस्तकबिल के लिए अहम है, इसलिए नौजवान आगे आएँ। उन्होंने कहा कि मूसा नदी के मुतासरीन के मुस्तकबिल की फ़िक्र न करें, हुकूमत इसकी जिम्मेदारी लेती है। उन्होंने कहा कि मूसा नदी की सफाई के मुखालिफ पार्टियों को अवाम ही सबक सिखाएगी। रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी पार्टी से नाराज़ हैं। उन्होंने कहा कि इन्हिराफ की सियासत की हौसला अफजाई की वजह से कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स को तौहीन का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी पार्टियों से आने वाले लीडर्स पार्टी के वक़ार को मुतासिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी इज्जत व वक़ार को ठेस
पहुंचाई जा रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक एमपी मधु याष्की गौड़ ने पार्टी से नाराज रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी से मुलाकात की। हाल ही में कत्ल किए गए गंगा रेड्डी के अफराद खानदान को मधु याष्की गौड़ ने पुरसा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मधु याष्की गौड़ ने कहा कि अपनी नाजायज कानूनी असासों को बचाने के लिए दूसरी पार्टी के एमएलए कांग्रेस में शामिल हुए हैं और आज कांग्रेस पार्टी में कदीम लीडर्स की तौहीन की जा रही है। मकतूल गंगा रेड्डी रुकन कौंसिल जीवन रेड्डी के दस्ते रास्त माने जाते थे। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। 2 रोजा दिल्ली दौरे के दौरान हफ्ते के दिन महेश कुमार गौड़ ने कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के पार्टी सदर बनकर 2 साल मुकम्मल होने पर उनको मुबारकबाद पेश की। इसके बाद राहुल गांधी के साथ 10 मिनट मुलाकात की। राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान रियासती हुकूमत के तरक्याती कामों और बहबूदी प्रोग्राम की तफसीलात पेश की। इसके अलावा महेश कुमार गौड़ ने तेलंगाना सदर बनकर 50 दिन मुकम्मल होने पर पार्टी में अहम पार्टी प्रोग्राम की तफसीलात पेश की। इसके बाद पार्टी के आमिला कमेटी के इंतखाब से मुतालिक राहुल गांधी से तबादले ख्याल किया। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने हफ्ते को एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक वी विश्व प्रसाद के हमरा लकड़ी का पुल, मेट्रो पिलर नंबर 1212 और इसके आसपास के इलाकों का तफसीली मुआयना किया। कमिश्नर हाइड्रा ने कदीम स्ट्रॉम वाटर पाइपलाइन का मुआयना किया। बताया गया है कि अक्सर यहां पानी के जमा होने की शिकायत मौसूल होती हैं। बलदी अहदेदारों को फौरी तौर पर पाइपलाइन की तब्दीली और 1 हफ्ते में इसके मरम्मती काम मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। यह भी ताकीद की गई है कि इन कामों के दौरान ट्रैफिक में खलल नहीं होना चाहिए। हाइड्रा कमिश्नर की जानिब से ऐसे 30 मकामात की निशानदही की गई है जहां अक्सर पानी के जमा होने की शिकायत मौसूल होती हैं। फीस बाज अदायगी और स्कॉलरशिप की अदायगी का मुतालबा करते हुए सेक्रेटेरिएट के पास भी तलबा तंजीम AISF की तरफ से एहतजाज किया गया। एहतजाजी कारकुनों का कहना था कि शोबे तालीम का कलमदान वजीर आला के पास है, इसके बावजूद भी फीस बाज अदायगी नहीं की जा रही है। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हफ्ते को दारुस्सलाम में रुकन कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने 33 मुस्तहकीन में चेक्स तकसीम किए। इन चेक्स की जुमला मालियत 13,25,000 रुपए बताई गई है। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस से इजहार तशक्कुर किया है। शामीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में हुए दिलकराश सड़क हादसे में एक नौजवान RTC बस की जद में आकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर जिले के साकिनान शेख सकलैन और मोहम्मद फुरकान करीमनगर से मोटरसाइकिल पर मेहदीपट्टनम आ रहे थे। इस दौरान RTC बस को मुबैना तौर पर ओवरटेक करने के दौरान मोटरसाइकिल का तवाजुन बिगड़ गया और दोनों बाइक से गिर गए। इस दौरान सकलैन जो बाइक चला रहा था बस के पहिए के नीचे आकर हलाक हो गया। इस दौरान में मोहम्मद फुरकान महफूज रहे। इस वाक़े का CCTV भी सामने आया है। पुलिस मसरूफ़े तहकीक़ात है। साइबराबाद कमिश्नरेट की रायदुर्गम पुलिस ने 40 बाइक रेसर्स के खिलाफ 5 केसेस दर्ज किए हैं। टी हब हैदराबाद नॉलेज सिटी के इलाकों में स्टंट के अलावा बड़ी आवाज के साथ बाइक रेसिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर कई बार वीडियोस भी वायरल हुए थे और पुलिस को भी इस सिलसिले में कार्रवाई करने पर जोर दिया गया था। बताया गया है कि पुलिस ने बड़ी तादाद में बाइक्स को भी जब्त कर लिया है। नौजवानों को ताकीद की गई है कि इस तरह की करतबबाजी और दूसरी सरगर्मियों से बाज रहें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वेमुलवाड़ा में खुले मैदान में बंदरों की लाशें दस्तयाब हुई हैं। मुकामी अवाम ने लाशों को देखकर पुलिस को इत्तला दी। समझा जा रहा है कि बंदरों को मार कर मैदान में फेंक दिया होगा। इस सिलसिले में मुकामी पुलिस तहकीकात कर रही है।
बोराबंडा इलाके में चाकू के साथ पान शॉप के मुलाजिम को धमकाने का वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक ब्लू स्टार रेस्टोरेंट के पास वाक़े पान शॉप के पास जुमे की रात 8 से 9 बजे के दरमियान आधे घंटे तक चाकू लेकर एक शख्स हंगामाराई करता रहा। मुकामी अवाम ने मुतालबा किया कि इस तरह के शरंगेजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। यंग स्किल यूनिवर्सिटी के तामीरी कामों का 9 नवंबर से आगाज। मेगा कंपनी 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। वजीर आला के साथ याददाश्त मुफाहमत। रेवंत रेड्डी वज़रा और अपोजिशन लीडर्स के फोन टैपिंग करवा रहे हैं। हिम्मत है तो लाई डिटेक्टर का सामना करने केटीआर का चैलेंज। इंदिरम्मा मकान स्कीम बहुत जल्द शुरू होगी। मुस्तहिक अफराद की निशानदही के लिए ऐप की तैयारी। पी श्रीनिवास का जायजा इजलास। एक पुलिस एक नज्म के मुतालबे को लेकर बटालियन पुलिस मुलाजमीन का रियासतगीर एहतजाज। मुनसिफाना इक़दामात का मुतालबा। शाहमीरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में दिलखराश सड़क हादसा। नौजवान आरटीसी बस की जद में आकर हलाक, साथी जख्मी। और नॉलेज सिटी और टी हब के पास करतबबाजी करने वाले 40 बाइकर्स के खिलाफ केस दर्ज। 2 व्हीलर्स जब्त। रायदुर्गम पुलिस की कार्रवाई।
اور ناظرین اسی کے ساتھ 4 TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. خدا حافظ.